السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبولیت کی بہترین نشانی۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمایا نہیں جائے گا، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جب بندہ سب چھوڑ کر اللہ پاک کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پاک پر کتنا یقین ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی فرشت میں گردانے آنے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی ہود و گرو ہے۔ بس تم یقین کامل رکھو اس پر، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ پاک ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو سحرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین ضمیر اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں رب نظر آتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھ دیتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یہ اسی کی جو انتہا خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جسے انتہا خوبصورت انداز میں لیا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل تو ہے۔ اللہ پاک کے آگے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جا نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ پاک کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا تھی، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ مستقبل کو لے کر فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب لکھنے کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر، وہ بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمت مت ہارا کرو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ پاک ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں ادا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مراد کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلی دل تام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال
आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। जिस घड़ी में नसीब संवरते हैं, कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सो रहे होते हैं और कुछ लोग जानमाज पर सर रखकर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। मुमकिन हो तो उसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। जो रब इतनी बड़ी कायनात को अकेले चला रहा है, जिसको जर्रे जर्रे की खबर है, तो क्या वो तुम्हारे मसाइल हल करने पर कुदरत नहीं रखता? बेफिक्र रहो, हर दुआ कबूल होगी। बस मांगना और यकीन रखना ना छोड़ना। यह आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवाती है। दर्द तुम्हें सज्जों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं। जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जानमाज तक लाती हैं। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह पाक के करीब हो जाए। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता, तो जान लो कि वो मुंतजिर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतजार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पल्ला मुकद्दर पर भारी है। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेकर जाते हैं। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजिजे से होते हैं। वो तो वहां से वसीला बनाएगा जहां से हम मायूस हो चुके थे। अल्लाह पाक हमारी पहली या आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि हमारी वाहिद उम्मीद है। तुम्हारी मखली दिल से निकली हुई दुआएं तो कब की कबूल हो चुकी हैं, बस उनका सामना करना बाकी है। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती। यह जो तुम टूट कर बिखरे हो, उसके बाद मोजिजा होना लाजिम है। जब तमाम रास्ते बंद नजर आए और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है, और वो दुआ का रास्ता है। उस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। कोई लफ्ज नामुमकिन में भी अल्लाह पाक ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तबक और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नुज़ूल मोजिज़ों का होता है, तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। तहज्जुद तक तो पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है। आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी उससे बेहतर और क्या हो सकती है। मुतमैन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए कुन फयाकुन के मोजिज़े उतरने वाले हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोजिज़ों की लिखी जाए। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है, तो यह नहीं देखता कि दुनिया उस चीज पर मुतमैन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है, तो नामुमकिन की सारी गिरें अपने आप खुल जाती हैं। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, यह सोच करके मेरा अल्लाह पाक मुझे लाजमी देगा। और फिर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो, अल्लाह पाक से इसरार करो, बार बार कहो, जोर देकर कहो, क्योंकि देने के लिए अल्लाह पाक के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं। और अल्लाह पाक बच्चों की तरह मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह पाक को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराजगी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह पाक हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है। और उसे यही काफी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मोजिज़े कर देता है और सारी नाराजगी अपने कुन पर खत्म कर देता है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुंचा देती है, सातों आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है, फिर कौन सा गम है ऐसा जो बाकी रह जाता है। जब आसमान से फौरन तुम्हारे लिए मदद उतार दी जाती है। सब्र के सफर में एक मकाम ऐसा भी आता है कि जब हम कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो पल भर में ही अल्लाह पाक उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों?
क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि तुमने कितना सब्र रखा था। और हम जब अल्लाह पाक को चुन लेते हैं तो यह मकाम अल्लाह पाक खुद ब खुद में लिख देता है। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ उस पर आंख बंद करके यकीन रखने की है, वही है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं। दुआएं तो सब मांगते, जब हम सब्र ही नहीं करेंगे और दिल में तड़प नहीं रखेंगे तो कैसे खुलेगा वो कबूलियत के दर। बेशक अल्लाह पाक साबिर के साथ है। तहज्जुद एक उम्मीद है जब सब कुछ नामुमकिन नजर आता है। तहज्जुद तो अल्लाह पाक को अपना बेहतरीन दोस्त बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। यकीन रखो, अगर अल्लाह पाक ने कुछ दरवाजे बंद किए हैं तो उसने अब भी तुम्हारे नसीब में गुंजाइश बाकी रखी कि तुम शिद्दत से मांगो और वो हर दरवाजे को खोल देगा तुम्हारे लिए। जो रास्ता अल्लाह पाक तुम्हारे लिए चुन लेता है बस वही रास्ता सबसे बेहतरीन होता है, और उस रास्ते पर आंख बंद करके चलना शुरू कर दो। जिसका साथ मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ मिलता है। अल्लाह पाक जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी दे देता है। फिर यह फिक्र कैसे, अल्लाह पाक पर यकीन रखो, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी हर दुआ कबूल होती नजर आएगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक हमें जिंदगी के हर मोड़ पर तसल्ली देता है। उसमें हमें यह समझाया जाता है कि हम ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना हो और अल्लाह पाक पर पूरा यकीन रखें। हमारा रब हमारे साथ है और अगर हम उसकी रजा और इनाम की तरफ रुजू करें तो हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें सब्र और उम्मीद की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जहाद पर पूरा यकीन रखने की सलाहियत बख्शे। अल्लाह पाक हमारे गमों और परेशानियों को समझता है और हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। मायूस न होना, जिनके लिए मुश्किलात ज्यादा होती हैं उनकी तरफ से रब की मोहब्बत और इनाम भी ज्यादा होता है। हमेशा उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक हमारे सब्र और ईमान को आजमा कर हमारे लिए बेहतरीन इनाम और फजल की तरफ ले जाता है। जानते हो, अल्लाह पाक पर तवक्कुल के बाद होने वाले मोजज़े हकीकत होते हैं, मोजज़े वकू पसीर होते हैं। जब तुम मुसलसल अब आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह पाक जवाब नहीं देता? जब तुम दुआ मांगते हो अल्लाह पाक तब कहीं किसी के दिल नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, कर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं जाया जा रही हैं। फर्क बस इतना है कि अल्लाह पाक जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या तुम्हें किसी तरह अल्लाह पाक के मंसूबे का इल्म हो जाए तो ईमान कैसा तो आजमाइश कैसी। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो क्योंकि यह राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। बाज दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है कि पूरी ना हुई तो सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि कुछ दुआएं हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। जो खोया है तुमने वो अल्लाह पाक की मसलियत का हिस्सा था। तुम अल्लाह पाक से उसे दोबारा मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। यह सब अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ है, तो परेशान क्यों हो? उन दुआओं को मोजज़ों में बदलना अल्लाह पाक का काम है, तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह पाक के काम की फिक्र छोड़ दो क्योंकि वो अपने काम करना बखूबी जानता है। जब हम अल्लाह पाक की रजा में राजी होते हैं तब अल्लाह पाक पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना, मामलात आपकी दस्तरस से बाहर हैं। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र से इंतजार करें। अल्लाह पाक से शिकवे करके अपना सब्र और अजर जाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक को तुम्हारा तवक्कुल और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वो चाहता है कि कुछ देर और तुम उसे यकीन के साथ उसे मांगो और यह नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह पाक भी तुम्हें नामुमकिन बसी से ही अता करता है। क्या यह मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह पाक ने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या यह मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह पाक ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है? क्या यह मोजज़ा नहीं है कि रात की तारीकियों में अल्लाह पाक ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है? क्या यह मोजज़ा नहीं है कि अब
अल्लाह पाक से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। अल्लाह पाक की रजा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ उसकी रजा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी तुम्हें नहीं मिल रहा तो फिर इंतजार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम उस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अजियत दे रही है तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे हो तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते। अगर वो न चाहे तो सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह पाक नाराज होता है तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फर्ज नमाज भी अदा नहीं होती और जब अदा करने पर आता है तो आधी रातों को जगा कर अपने हुजूर खड़ा भी कर देता है। सजदे की तौफीक भी देता है। रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल भी करता है और जो मांगा जाए वो भी देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अभी भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह पाक हर चीज की असलियत हमारे सामने जरूर खोल देता है। हर इंसान की जब कोई इंसान हमें तकलीफ देता है वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। अल्लाह पाक का इशारा ही समझो और अपने दिल को मजीद तकलीफ से बचा लो। दुआ करो कि अल्लाह पाक हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे जो आगे जाकर तुम्हारे दिल को तोड़ न दे, और अल्लाह पाक उस चीज को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दे उनकी हकीकत दिखाकर। सूर बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो तो देखो जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए कि कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपना अल्लाह पाक पर यकीन और पुख्ता कर लेना, फौरन उठना, वजू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह पाक से मदद मांगना कि अल्लाह पाक आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ। अब मुझे साबित कदम रख, मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, मुझे शैतान के वसवसे से बचा लेना। मैं माजी के गुनाह में पनाह नहीं चाहता। फिर देखना अल्लाह पाक कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश होती है। तुम तो खुशनसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी है और अपने रास्ते के लिए चुना है। अल्लाह पाक को पाने का सफर आसान होता तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी ना जाती, ईमान कमजोर पड़ जाता, कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाते, कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं, उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर अल्लाह पाक को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफर करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं, और यह यकीन तुम्हें अल्लाह पाक का बना देती है, क्योंकि अल्लाह पाक को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निजाम में हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल न करेगा। अल्लाह पाक से जब भी मांगो जैसे भी, वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मोजज़े रोनमा होते नजर आएंगे। जिन
زندگی کے بہت سارے اسبابوں میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پاک پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کی مکافت عمل کی، تو وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو اور کیسے کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتا تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ پاک نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز تمہیں کیسے ملے گی؟ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے؟ پتہ نہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے کسات تو تمہاری ذات کی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا واسطہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک وہ کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ پاک بھر نہیں سکتا۔ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملی، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جرموں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومیت سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کی مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ پاک کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجت تو اسی کے در سے پوری ہونی ہے، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جائے یا سب سے آخر میں۔ یہ در تمہارے لیے کچھ پیغام لے کر آتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائش تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ پاک بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ پاک بن جاتا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے جایا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ پاک نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ پاک ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ پاک ہو پھر وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستان سناتے ہو۔ تمہاری عرض تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، وہ بہت غور سے سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ پاک ہے؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب سے پہلے اللہ پاک سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ اللہ پاک کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔
तुम जानकर उसका शुक्र अदा करने लगते हो। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीजों से आजमाता है। अल्लाह पाक तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह पाक तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। अल्लाह पाक हालात से मजबूर होकर तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह पाक बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह पाक आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मोजज़ों तक लाता है। तुम अल्लाह पाक से अपनी दुआओं की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारी मनपसंद चीज से ना तो कभी तुम्हारी आजमाइश करता है और ना कभी तुम्हें उससे की तलब लगाता है जो तुम्हारी नहीं होती। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई दुआएं जब अर्श तक पहुंचती हैं तो कुन की खुशखबरी साथ लेकर ही लौटती हैं। जब तहज्जुद की दुआएं अर्श पर गूंजती हैं तो फिर रब तुम्हारी दुआ को तुम्हारी झोली में डाल ही देता है। फिर तो तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश मुकम्मल हो जाती है और तुम्हें मुतमईन कर दिया जाता है। जब अल्लाह पाक का लाडला बनने की जुस्तजू हो या कबूल होने की तड़प दिल में मौजूद हो तो तहज्जुद में खड़े होने के लिए यह सर्द रातें असर नहीं करती। जब अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में उतर जाए तो वजू के लिए ठंडे पानी से भी जिस्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो यह याद रखो कि तुम जिससे दुआएं मांग रहे हो वो मालिक गुण है। जब दुआ कर रहे हो तो यह ध्यान में रखना कि वो अलमुजीब है, यानी दुआ कबूल करने वाला। और जब दुआ मांग लो तो यह यकीन रखना कि दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि वो अलकादिर है, यानी हर चीज पर कुदरत रखने वाला। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, यह वादा है तुमसे अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताक़ी जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं न तुम्हारी दुआओं को और न अपने वादों को। तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है वो अल्लाह पाक के पास बहुत संभाल कर रखी हुई है। वो तुम्हें तब नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलियतों के तहत तुम नवाजे जाओगे। और बेशक तुम्हारी अर्श तक गई कोई भी सदा खाली नहीं जाएगी। एक एक पुकार का जवाब वो रब जरूर देता है। यकीन जानो कि मुश्किलात महज चंद घड़ियों की बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है और जिसकी तुम्हें जरूरत है। और बेशक वो रब हमारी जरूरतों से पूरी तरह वाकिफ है। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। अल्लाह पाक जानता है कि बहुत कमजोर हो आप, इसलिए उन्हीं चीजों के जरिए आजमाता है जो आपकी पसंदीदा होती हैं। और यकीन करो उसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह पाक से आपका रिश्ता भी मजीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। तुम्हारा अल्लाह पाक तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हारे वजूद के लिए मिट्टी भी इकट्ठी नहीं की थी, तुम अपनी माँ के वजूद का हिस्सा भी नहीं बने थे। वो तुम्हें तब से जानता है कि मेरा यह बंदा है, इसने तुम्हारा एक एक जोड़ बहुत मोहब्बत से बनाया है। वो तब भी जानता रहेगा जब रोजे महसर तुम्हारी माँ तक तुम्हें नहीं जानेगी कि अल्लाह पाक की रजा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सब उसकी रजा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी नहीं मिल रहा तो भी इंतजार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम इस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अजियत दे रही है तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे हो तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब कुछ बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते। अगर वो ना चाहे तो सारी बात तो तौफीक की होती है। जब अल्लाह पाक नाराज होता है तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फर्ज नमाज भी अदा नहीं होती और जब अदा करने पर आता है तो आधी रातों को जगाकर अपने हुजूर खड़ा भी करता है, सजदे की तौफीक भी देता है, रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल भी करता है, और जो मांगा जाए वो भी देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अगर अल्लाह पाक दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है कि वो नसीब बदलने को मान गया है। अगर वो मुसलसल एक ही दुआ का ख्याल दिल से नहीं निकाल रहा, ऐन मुमकिन है वो मुकद्दर में लिखा जा चुका है। वो राजी होता है जब ही तो डालता है दिल में ख्याल, बिना मकसद के तो वो कुछ भी नहीं करता। तो फिर क्यों डरते हो उन रास्तों से जो उन पर चला रहा है? आखिर उसने भी तो कुछ ना कुछ सोच रखा है। रास्ते उसकी मर्जी के हो सकते हैं लेकिन मंजिल तुम्हारी मर्जी की होगी। वो बार बार दुआ की तौफीक के साथ
सराह भी दे रहा है, सहारा भी दे रहा है कि मनाओ उसे, अभी भी नसीब में कुन की उम्मीद कहीं बाकी, तो फिर क्यों हिम्मत हार गए हो? जब थक जाए तुम्हारा वजूद उसको बताओ, बस अब आगे मौजिज़ों का पहरा है, तो फिर क्यों हो तुम्हारा दिल ना उम्मीद, उसे बताओ। कुन तो अहबाब की मोहब्बत का सबूत है, जो टूटे तुम्हारा सब्र फिर भी तो उसे बताओ कि अब अल्लाह की मदद तो बस करीब है। अल्लाह इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और यह इम्तिहान सहना भी मुश्किल होता है। कभी कभी हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतजार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह का इम्तिहान तकलीफ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे, तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मजीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। यह इम्तिहान तुम्हारे दिल दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुन को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा, और शायद यह रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं लेनी। लोग कुछ भी नहीं है, यह मामला सिर्फ आपका और अल्लाह का है। तो जैसे अल्लाह ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह से तब तक मांगें जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह ने ही आखिर देना है। ना तो यह नहीं सोचें कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं, अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह से मांगने वाले शर्मिंदा कभी भी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह की तरफ भेजी गई हार में भी जीत होती है। न मांग कर पछताने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जितना मर्जी तो सही अल्लाह है, और अल्लाह जिसे चाहता है फतेह दे देता है। कबूल न होने वाली दुआ कबूल हुई दुआ से बड़ा मौजज़ा होती है, क्योंकि आपकी कुछ दुआएं आपको तोड़ देने वाली होती हैं। और जब अल्लाह यह देखता है कि आपकी नीयत साफ है, तो अल्लाह आपको उन तोड़ देने वाली दुआओं से बचा लेता है, उन दुआओं के लिए जो आपके हक में बेहतर होती हैं। और यह सजा नहीं है, बल्कि अल्लाह को आपसे इतनी मोहब्बत है कि वो आपका गलत इंतखाब करने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर औकात हम रब ही अपने दुश्मन होते हैं, और हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है किसी चीज को आप बुरा समझो और वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह खूब जानता है। कभी कभार जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां हम सभी सोचते हैं कि अब हम खुद को कभी भी बदल नहीं सकते, और फिर लोग भी हमें डराने लगते हैं, यह कहकर कि अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अल्लाह माफ भी नहीं करेगा। हालांकि अल्लाह के यहाँ तो कभी भी देर नहीं होती, और ना ही अल्लाह ने आपके वापस पलटने के लिए किसी खास वक्त की शर्त मुकर्रर की है कि उस वक्त पर अगर पहुंच गए सो पहुंच गए, उसके बाद नहीं आ सकते। जब तक आपके जिस्म से आखिरी सांस नहीं निकल जाती, तब तक आपके पास अल्लाह को मनाने की मोहलत है, खुद को बदलने का मौका है। अल्लाह का दरवाजा हर इंसान के लिए खुला है, तो फिर आपने लोगों की बातों में नहीं आना। जैसे अल्लाह का उनके साथ रिश्ता है, वैसे ही अल्लाह का आपके साथ भी रिश्ता है। अल्लाह जितना उनका है, अल्लाह उतना आपका भी है, और यह हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अजर और सवाब के फैसले अल्लाह के यहाँ दर्ज की गई इंसान की नीयतों पर और अमल साले पर होने लोगों की तैयार करदा मर्दुशुमारी रजिस्टरों पर नहीं, कि किसको जन्नत में रखा जाए और किसको जहन्नुम में, तो फिर लौट जाएं अल्लाह की तरफ उससे पहले कि लौटाए जाएं। थाम लें अल्लाह के दरवाजों को उससे पहले कि यह बंद हो जाएं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साज मोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह।